Good morning, students. Yesterday we have seen Shunga dynasty, but due to some technical problem, the video was not so proper. So we are going to just revise from Shunga dynasty. Shunga dynasty was founded by Pushyamitra Shunga, and Pushyamitra Shunga was the chief commander of the last Mauryan king, Brihadrata. He ruled till 151 BC and he performed Ashwamedha Yajna twice in his tenure. Patanjali was the priest in the Ashwamedha Yajna of Pushyamitra Shunga. The question is asked that in whose court Patanjali was a priest, or in which yajnas Patanjali played a role of priest. Then answer is Ashwamedha Yajna in Pushyamitra Shunga's court. So let's proceed. The other ruler of Shunga dynasty were Agnimitra, Jeshtamitra, Bhadrak, Bhagwat and Devbhuti. Last ruler was Devbhuti, was dethroned by Amatya Vasudeva around 73 BC. लगभग 73 BC के दौरान अमात्य वासुदेव नाम के एक पर्सनालिटी ने देवभूति को डिथ्रोन किया. उसके बाद नेक्स्ट आता है सातवाहना डायनेस्टी. Satvana dynasty was founded by Simuka in 60 BC in Andhra, the valley river of Godavari and Krishna. Satkarni first was the son and successor of Simuka, became ruler in 37 BC and performed. Sorry, 1 minute. We just shorten the screen because it was too highlighted. The words are skipping here. Yes. So let's start. Satvana dynasty. Satvana dynasty's foundation was laid by Simuka in 60 BC in Andhra, that is the valley of river Godavari and Krishna. Satkarni first, the son and successor of Simuka, became ruler in 37 BC. He took the dynasty to great height. मतलब सब थोड़ा पावरफुल राजा थे. कौन? सतकर्णी फर्स्ट. किसके? सिमुका के सक्सेसर अर्थात उत्तराधिकारी और उनके बेटे भी. उन्होंने इस डायनेस्टी को ग्रेट हाइट तक पहुंचाया, अश्वमेध यज्ञ किया और प्रतिष्ठान को जो है अपना कैपिटल बनाया. उसके बाद 23rd रूलर हम देखते हैं, क्योंकि इन बिटवीन जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होने की वजह से सातवाहना डायनेस्टी आपकी बुक में थोड़ा शॉर्टन दिया हुआ है, सो नॉट सो डिटेल. सो लेट्स नेक्स्ट द गौतमीपुत्र सतकर्णी. 23rd रूलर ऑफ सातवाहना eliminated the power of western kshatrapas in Maharashtra and re-established the power and prosperity. किसकी? अपने राज्य की. वेस्टर्न क्षत्रपा जो महाराष्ट्र में एक नई डायनेस्टी उदय हो रही थी उसको एलिमिनेट किया, उनको थोड़ा सप्रेस किया और अपनी जो डायनेस्टी है सातवाहना डायनेस्टी को एक ग्रेट ऊंचाइयों तक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने भी निभाया. तो हमने सातवाहना डायनेस्टी के 3 रूलर का नाम देखा. एक जो फाउंडेशन लीडर था सिमुका, देन उनका बेटा सतकर्णी फर्स्ट एंड देन गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 23rd रूलर थे सातवाहना डायनेस्टी के. क्लियर? चलो, तो सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स कैसे थे थोड़ा इन डिटेल देखते हैं. ऑल द रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम. 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, दोज. एंड वैदिक यज्ञ परफॉर्म किया उन्होंने अपने टेन्योर में, लाइफ टाइम में. They gave charity to Buddhist and Jain viharas and rest houses. Though they were the followers of Hindu dharma, Hindu religion, they adorned the Buddhist and Jain dharma also. Trade, commerce, agriculture and other industries were developed at the time of Satvana dynasty. Currencies made of silver, copper, lead and bronze in circulation. Built many chaityas and viharas in western Deccan. इन चैत्य विहारा में से कार्ला चैत्य जो है सबसे फेमस है, जो 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर हाई है. उसके बाद गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे हम. गुप्त डायनेस्टी की फाउंडेशन जो लेड करी है श्री गुप्ता ने इन 275 AD.
अब हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, जनरली BC पढ़ रहे थे, दैट इज बिफोर क्राइस्ट एरिया, एंड नाउ वी आर आफ्टर क्राइस्ट, दैट इज एंटो डोमिनी. So Gupta dynasty's foundation laid by Sri Gupta in 275 AD. After Sri Gupta, Ghatotkacha became ruler and adorned the title of Maharaja. Later on, the son of Ghatotkacha, Chandragupta I, became the ruler of Gupta dynasty, and from here we are just familiar with this dynasty. So let's see Chandragupta first. Chandragupta first took the title of Maharaja Dhiraj. He got married to Licchavi princess. That name was Kumara Devi. Started an era that famous by name of Gupta era, that is संवत. संवत नाम का जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं, विक्रम संवत, शके संवत. तो शकाज ने तो शक कैलेंडर स्टार्ट किया था, और गुप्ताज ने जो है गुप्ता एरा, दैट इज़ विक्रम संवत के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो स्टार्ट किया था. समुद्रगुप्त फर्स्ट देखते हैं तो 335 से 380 तक जो है इनका टेन्योर रहा है. उनके आइडियल थे पूरे इंडिया को जीते और एक छत्र शासन स्थापित करें, यूनिफाई करें इंडिया को. हम देखते हैं उनके मिलिट्री एक्सपेडिशन, जिसके सोर्सेज हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलते हैं, जो उन्हीं के कोर्ट पोएट, किनके कोर्ट पोएट, समुद्रगुप्त के. तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट अगर पूछा तो क्या नाम है, हरिसेन. और इन्होंने कौन से उनके मिलिट्री एक्सपेडिशन, मतलब जहाँ पर इन्होंने इन्वेशन किया, अटैक किया, जीता, तो विक्ट्री के बारे में समुद्रगुप्ता के हमें कहाँ से पता चलता है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें ये बात पता चलती है. और हम इनके मिलिट्री एक्सपेडिशन जो हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं. साथ के साथ ये भी बताया गया है इलाहाबाद प्रशस्ति में कि इन्होंने कोई भी बैटल जो है वो हारा नहीं था. इनकी विक्ट्री हम 5 पार्ट में, 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. पहला ग्रुप जब इन्होंने गंगा यमुना के दोआब स्टेट्स जीते. देन सेकंड जब इन्होंने ईस्टर्न हिमालय जीता. थर्ड जब इन्होंने अपने एम्पायर के बॉर्डरिंग स्टेट्स, और ईस्टर्न विंध्या जो जैसे अरावली हिल रेंजेस हैं वैसे विंध्या हिल रेंजेस भी हैं. तो विंध्या हिल्स रीजन जो है इन्होंने ईस्टर्न विंध्या हिल रीजन, और साथ के साथ अपने एम्पायर की बॉर्डर ब्रॉडन करी थी. फोर्थ ग्रुप में हम देखते हैं ईस्टर्न डेक्कन एंड द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. उसके बाद फिफ्थ ग्रुप में शकाज और कुशाणास के स्टेट्स पर इन्होंने इन्वेड किया था और उन्हें जीता था. और समुद्रगुप्त के बारे में अधिक जानते हैं हम, तो हम पाते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो बहुत एक्सीलेंट पोएट थे, और उन्हें फाइन आर्ट में भी एक्सेल्ड हासिल था, मतलब उसमें भी वो एक्सीलेंट थे, और एज वेल एज वो म्यूज़िक के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे. उनके पास एक बहुत पावरफुल नेवी थी जो उनके फॉरेन रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती थी. वी फाइंड हिज इमेज प्लेइंग वीणा ऑन अ कॉइन एंड रिटन अश्वमेधा पराक्रमा. उनके समय के जो सिक्के हमें मिलते हैं, कॉइन्स भी क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं. तो इन कॉइन्स पर जो है समुद्रगुप्ता के वीणा प्ले करते समय जो इमेजेस हैं वो इम्बाइब्ड है, और अश्वमेधा पराक्रम ऐसा भी उसके ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है. He was devotee of Lord Vishnu but had equal respect for other religions too. उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड. इनका जो टेन्योर है वो 380 से 412 AD तक है. द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता नोन एज देवराजा एंड देवगुप्ता. He took who? Chandragupta II took the title of Vikramaditya after the victory over Shakas. शक जो एक ट्राइब थी, मतलब तो उस ट्राइब पर इन्होंने जब जीत हासिल करी तब अपने आप के लिए इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी. उन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात भी जीता. एंड ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वाकाटाका किंग रुद्रसेना. वकाटका जो किंग थे रुद्रसेन साउथ में, उनके साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी और उज्जैन को जो है उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई.
उसके बाद हम देखते हैं कुमार गुप्ता और महेंद्रादित्य। कुमार गुप्ता और महेंद्रादित्य में हम बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं याद रखने हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वो कुमार गुप्ता है। एंड द एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक जो है इनका एम्पायर एक्सटेंड था। एंड देन हम देखते हैं कि इन्होंने पुष्यमित्रा की बहुत सारी रिवोल्ट्स को फेस किया था। देन वी सी स्कंदगुप्ता, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ही रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक बिल्ट बाय मौर्यन रूलर्स। आपके बुक के बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सुदर्शन लेक जो है किसने रिनोवेट करी है, तो स्कंदगुप्ता ने करी है। और यही क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए कि कौन सी लेक जो है वो स्कंदगुप्ता ने रिनोवेट की, सुदर्शन लेक, और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करी गई थी, तो मौर्यन रूलर के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। ओके और स्कंदगुप्ता ने बहुत सारे मलेच्छ हुनाज को डिफीट किया था और उनको कन्फ्रंट किया था। ठीक है, उसके बाद हम गुप्ता डायनेस्टी का कल्चरल अचीवमेंट देखते हैं। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। समुद्रगुप्ता एंड कुमार गुप्ता फर्स्ट परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञ। दे सपोर्टेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू। According to Fayan, Fayan कौन थे? Who was Fayan? Fayan was the Chinese pilgrim visited during the reign of Chandragupta II. देखो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बट बहुत बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम तक पूछे जाते हैं। एक्चुअली फायान एंड येनसांग ऐसे 2 चाइनीज़ पिलग्रिम ने हमारे एंशियंट इंडिया के टाइम में इंडिया विजिट किया है। तो जनरली पूछा जाता है कि फायान किसके समय आए थे या चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन सा चाइनीज़ पिलग्रिम आया था। तो हमें याद रखना है फायान जो हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आए थे। उन्होंने इस सोसाइटी का मतलब इंडियन सोसाइटी का जो ओवरव्यू बताया वो इस प्रकार था कि गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत अच्छे से वेल एडमिनिस्ट्रेटेड था। क्राइम जो हैं बहुत रेयरली होते थे। जनता पर, पब्लिक पर टैक्स बर्डन बहुत लेस था। संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी और बहुत सारे ग्रेट राइटर्स, पोएट, मैथमेटिशियंस जो हैं वो कोर्ट में संरक्षित थे, संरक्षण उनको दिया जाता था, पूजनीय थे उस समय के राजा महाराजाओं के लिए ये सब लोग। रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो हैं अभी प्रेजेंट फॉर्म में हमें जो मिलते हैं वो गुप्ता पीरियड के टाइम में ही कंपोज किए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, ये इन सब ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में बहुत इनकी डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। डेसिमल सिस्टम जो है इसी समय इन्वेंट हुआ था और पेंटिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, इन सब के बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो हमें झांसी, कानपुर, अजंता वगैरह से मिलते हैं। दिल्ली का आयरन पिलर जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो दिल्ली का आयरन पिलर है। उसके बाद 80 फीट टॉल स्टेचू ऑफ बुद्धा है जो नालंदा में मिला और 7.5 फीट टॉल बुद्धा कॉपर स्टेचू है जो सुल्तानगंज में मिला। ये सब उस समय के साइंस और आर्ट्स इस सब के फाइन एग्जाम्पल्स है। कुछ इम्पोर्टेंट बुक जो हैं वो गुप्ता के समय, गुप्ता डायनेस्टी के समय लिखी गई थी। कालिदासा के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम एंड रघुवंशम, शुद्रका के द्वारा मरीचिकट्टकम लिखी गई और विशाखा दत्ता के द्वारा मुद्रा राक्षसा लिखी गई। उसके बाद अगर हम जनरल, पहले तो हमने देखा कि फायान ने जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में या चंद्रगुप्त सेकंड के समय वो आए थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा जिसमें उन्होंने सोसाइटी भी इंक्लूड करी। अब हम देखते हैं कि जनरली हम जो है अपने ऐतिहासिक वर्णन से गुप्ता डायनेस्टी के समय सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। एज यूजुअल ब्राह्मण जो बहुत हाईएस्ट रिगार्ड होते थे, उनकी ड्यूटीज़ थी पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और दान धर्म।
ठीक है। क्षत्रिय जो नेशन के प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे, वैश्य ट्रेड और कॉमर्स करते थे, शूद्राज जो हैं ये बाकी तीनों जो वर्णाज हैं उनको सर्विस अपनी प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद हम देखते हैं मुद्रवा शक्ति करना अम्बेस्था, देन पार्शवा वर द मिक्स्ड कास्ट ऑफ द पीरियड। इस समय कुछ और कास्ट का वर्णन भी है जिसमें करना है, मुद्रावशक्ति है, उसके बाद पार्शवा है, ये सब कुछ और मिक्स्ड कास्ट थी। उसके बाद कायस्थ नाम हम आज भी हमें सुनने को मिलता है। कायस्थ जो है एक क्लास का सेक्शन था, धीरे धीरे वो कास्ट में जब पॉपुलेशन बढ़ती है किसी एग्जैक्ट कास्ट की तो क्लास की, तो धीरे धीरे वो कास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह कायस्थ जो है किसी दूसरी कास्ट की सब क्लास थी पहले, फिर बाद में वो स्वयं एक स्वतंत्र कास्ट के रूप में मानी जाने लगी। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम अगर हम विमेन की स्टडी करते हैं, अर्थात कंडीशन ऑफ विमेन कैसी थी ये हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि विमेन हैड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सोसाइटी सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट विमेन का उस समय था। रिलीजियस एक्टिविटी में किसी भी पुरुष का अपनी वाइफ के साथ बैठना मैंडेटरी था, मतलब बिल्कुल कंपलसरी था। उस समय विमेन एजुकेटेड हुआ करती थी। वेल सिस्टम मतलब घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं थी। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो हैं वो गुप्ता के समय मेंशन हैं, जिसमें स्वयंवरा एक है। विमेन जो हैं वो उस समय के लिटरेचर में भी बहुत आइडियली डिपिक्ट है, मतलब जो हमें लिटरेचर से भी तो पुराने समय की जो भी डायनेस्टीज़ है उस समय की सोसाइटी कैसी, विमेन का अस्तित्व कैसा, ये सब हमें पता चलता है। तो हम उस समय का लिटरेचर भी अगर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि विमेन का स्थान बहुत उच्च था, अच्छा था। अगर उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी तो अपने पति की प्रॉपर्टी की पहली वारिस पत्नियां हुआ करती थी। यहाँ गुप्ता डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हुई है। उसके बाद वर्धना डायनेस्टी, जिसे पुष्यभूति के नाम से भी हम जानते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। वर्धना डायनेस्टी की फाउंडेशन जो है पुष्यभूति, जो एक डिवोटेड वर्शिपर थे शिवा के 66th सेंचुरी में नियर थानेश्वर के द्वारा पुष्यभूति डायनेस्टी कह सकते हैं या वर्धना डायनेस्टी की फाउंडेशन लेड करी गई। देन मेजर रूलर्स इस डायनेस्टी के हम पढ़ते हैं तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। आफ्टर प्रभाकर वर्धन हिज सन राज्यवर्धना बिकेम रूलर बट एजिनेटेड बाय गॉड, जो बंगाल के थे गौर किंग शशांका इन 606 AD। प्रभाकर वर्धन के बाद उनके बेटे राज्यवर्धन जो है रूलर बने, बट एजिनेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको हरा कर युद्ध में मार दिया जाता है, मर्डर्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हुए हम एसेसिनेटेड वर्ड यूज़ करते हैं। तो गौर एक बंगाल के राजा ने, जिसका नाम शशांक था, इन्होंने 606 में प्रभाकर वर्धन के बेटे राज्यवर्धन को एजेंसेट कर दिया था। हर्षवर्धना उनका छोटा भाई उनके बाद राजा बना 606 AD में, और 40 साल तक उन्होंने, मतलब 647 तक जो है उन्होंने राज्य किया। ड्यू टू नॉट हैविंग सक्सेसर द पुष्यभूति डायनेस्टी एंडेड। हर्षवर्धना के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है या उसका एंड है वो यहाँ पर हो जाता है। हर्षवर्धना का जो 40 इयर्स का टेन्योर है उसके बारे में हम एक समअप पढ़ते हैं। राजश्री जो हर्षवर्धना की सिस्टर थी, वो एक अननोन जगह चली गई थी अपनी लाइफ बचाने के लिए। हर्षवर्धन ने उनको ढूंढ निकाला। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है शशांक के विरुद्ध भेजी, पर आर्मी को नर्मदा रिवर से ही वापस लौट के आ जाना पड़ा इन 620 बाय पुलकेशिन सेकंड के कारण।
उसके बाद हर्षवर्धन एक्सटेंडेड हिज आर्मी फ्रॉम हिमालय माउंटेन इन नॉर्थ टू बैंक्स ऑफ नर्मदा इन द साउथ, क्योंकि हमने देखा कि भाई नर्मदा रिवर से आगे वो बढ़ नहीं पाए थे, पुलकेशिन सेकंड का सामना नहीं कर पाने की वजह से नर्मदा से वो वापस लौट के आए थे। तो अब जब नर्मदा, हमें पता है कि साउथ में लगभग प्लेट्यूज़ के वहाँ पर नर्मदा बहती है। अगर आपको इंडिया का मैप, माइंड मैप अभी आपके रेडी हुआ होगा तो हमने नर्मदा पढ़ी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये 4 नदियाँ हमने साउथ की पढ़ी है। तो नर्मदा के ऊपर अब हम चलेंगे, क्योंकि नर्मदा से नीचे साउथ में तो वो नहीं जा पाए थे। तो नर्मदा से ऊपर अगर हम हर्षवर्धन का एम्पायर देखें तो हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ से लेके साउथ में नर्मदा बैंक तक आके, नर्मदा रिवर की बैंक तक आकर उनका जो एम्पायर है वो क्लोज हो गया था। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो गंजाम इन द ईस्ट टू वल्लभी इन द वेस्ट, उत्तर दक्षिण तो हमने पढ़ लिया, हिमालय से लेके नर्मदा बैंक तक। अब ईस्ट और वेस्ट से पढ़ें तो गंजाम जो है ईस्ट में से लेकर वल्लभी जो है, जिसे हम वल्लभी भी कहते हैं, ब की जगह वो यूज़ भी करते हैं, वेस्ट तक हर्षवर्धन का एम्पायर एक्सटेंड था। कन्नौज उनकी कैपिटल थी। उन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। शिवा के वर्शिपर थे और सन के वर्शिपर थे, पर बाद में जो है बुद्धिज़्म इन्होंने अडोप्ट कर लिया था। और हर 5 साल में एक जो सेरेमनी है वो गंगा यमुना के संगम पर, संगम को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंसेस, तो कॉन्फ्लुएंस पर गंगा यमुना के वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते थे और वहाँ पर वो दान धर्म का कार्य और पब्लिक वेलफेयर का कार्य करते थे। द चाइनीज़ पिलग्रिम यानसांग अटेंडेड द 6th सेरेमनी। ऐसी बहुत सारी हर 5 साल के दौरान उन्होंने जो सेरेमनीज़ करी थी गंगा और यमुना के संगम पर, वो 6th सेरेमनी जो है यानसांग ने अटेंड करी। इसका मतलब यानसांग किस समय आए थे तो हर्षवर्धन के समय में, और फायान किस समय आए थे तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय। जब आप बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की पढ़ते हैं तो आप जब बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है कोरिलेट करना स्टार्ट करेंगे, पर कोरिलेट तब हो पाएगा जब आपको थोड़ा अच्छे से लर्न हो जाएगी चीज़ें कि नॉर्थ में ये थे तो अच्छा उस समय साउथ में कौन थे, साउथ में ये थे तो वेस्ट में कौन थे, ईस्ट में कौन थे। ऐसे जब हम उनका टाइम एरा लर्न कर लेते हैं या हमें धीरे धीरे रिवीजन के दौरान टाइम एरा लर्न हो जाता है तो हमें ये चीज़ें याद हो जाती। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई होप कि 45 मिनट का लेक्चर अगर हम फेस टू फेस लेते हैं तो यहाँ भी हम लगभग 30 to 35 मिनट का लेक्चर ले सकते हैं, बिकॉज इससे लेस टाइम में प्रॉपर जो है एक फ्लुएंसी आती नहीं है लेक्चर की। एक डायनेस्टी एक स्लाइड में कंप्लीट होती है और वहीं जब हम रुक जाते हैं